joining rapidly. Of course, this is a serious conversation, and I think many of you will really draw a lot of insight in this. To introduce, I'm Gautam Jain. I'm chairing the JBN at Apex, and I personally welcome you all to this webinar organized and hosted by JBN Jito Business Network Center for Excellence. At JBN Center for Excellence, our endeavor is always to take initiatives that are clutter breaking, powerful, impactful, and has content and insight that brings change. Today, we have Anilji Agarwal, founder and chairman of Vedanta Group, and our dear friend Anand Surana, who shall moderate the session. Anand had actually promised us to connect with Anilji and bring him for the Drishtikon event, which all of us are aware about, was supposed to happen in Delhi, but somehow due to Corona COVID had to be postponed. But as we always say, good things, if they are supposed to happen, they will happen. And finally, we have him on the JBN platform. Thanks, Anand, for the same. To introduce Anand, Anand is a dear friend and is a long-standing member of Jito. Currently, he's a vice chairman of Jito Chennai chapter. In the past, in the Jito fraternity, he has done he's taken a lot of initiatives on interesting international conferences, brought a lot of corporate honchos and great leaders onto the platform, and has been chairing Jitopreneurs for almost 2 years. 2 mega events have happened in his tenure in London, and there were participants from about 23 countries and 11 international chapters, and big magnates of the business world were there already. He has also chaired CIS startup setups, and has taken an initiative on schooling and education. Now, Anand, we will take it forward from here, and I request everybody to stay focused and ensure that you draw as much as you can from this learning session. Welcome you all once again, and Anand, on to you now. Thank you, Gautam Bhai. It's such a pleasure to have you with us on Jito platform, Anilji. We still have those great words of wisdom you gave us during the Jitopreneurs conference at London. You stole the show. All of us were like, keep speaking, we want to hear from you more and more. Friends, happy to share with you that as of now, we have Jito members attending from New York, California, and many states of America, London, Switzerland, Singapore, Spain, Bangkok, Oman, Dubai, Paris, Australia, and in all, 14 countries including India. That's a whooping response, and I'm flooded with questions. I assure you, he'll be addressing most of them in the conversation today, and few of those which is left, I'll try to ask him on your behalf. Let's share as the areas he's going to cover today, and the topics would be like he's going to talk about our contribution today, because the amount of contribution what Vedanta does is something which is beyond imagination, and what we should be doing as human at this particular crisis hours. And then we're talking about self-reliance and nation building. He is going to mention about opportunities post-COVID world, which is India 2.0. And then comes, should Indians risk? And finally, message to youngsters and startups, which I'm sure is very close to his heart. Friends, today the whole world is trembling with fear of being destroyed by an invisible yet invincible virus which can puff out the lives of supreme most creation of God in a jiffy. What are we afraid of and why? It is the uncertainty of future and future shocks that await us in the form of unavailability of food, job, money, survival of businesses, etc. The list is big. Even men with riches and comforts are trembling with fear because this virus has no discrimination as to whom to attack. It will not spare anyone, irrespective of what position or how powerful you are with a muzzle or political powers. Therefore, the lockdown is truly a blessing of God to learn our true lessons of life, remind ourselves of unforgotten, willfully neglected human values, and plan on what we can do today to uplift the depressed spirits of business community who have negative thoughts of never raising our heads with success and self-confidence. Akshaya means that which never diminishes. Like the Akshaya Patram Lord Krishna had blessed Draupadi with, a never emptying bowl of food, this legendary personality, the eminent business mogul and metal tycoon, has been blessed with not only materialistic abundance, but also with a compassionate, caring heart full of human feelings like the unabated perennial flow of holy Ganges. On the Akshaya Tritiya day,
he had tweeted on the greatness of Annadan that Indians have endeavored to provide food to the needy during this difficult time. Lord Krishna tells Arjuna, food comes out of rains, rains through yajna, yajna comes through sacrifice, and true yajna is performance of Panchamaha dharmas, namely worshipping the Lord, forefathers, all living beings, other fellow beings, and knowledge. This is the key knowledge. Yes, we have today this great entrepreneur who is going to take the Kalyug business avatar of Lord Krishna to give us the business Gita as how Lord Krishna convinced Arjuna to fight the war when Arjuna throws his bow and arrow burnt out with mental agitation, delusion, attachment, and illusion, yet surrendering to the Lord. Please teach me what is the best course of action. Anilji, we bow in silent reverence to you, your mature wisdom and practicable solutions you are going to offer to come out of this overpowering gloom and doom that is engulfing our minds. We feel we are caught in a maze, not knowing the correct path to come out. Sir, we're looking forward for you to show this path to us. Friends, this is something which I need to put it up to you to know who He is. The end part of Holy Vedas is called Vedanta, which prescribed path for human liberation from samsara. It glorifies, sacrifices the holy means to attain liberation. Anilji, a true Vedantian, has donated crores of his wealth to help COVID-19 initiatives and relief funds. As a forerunner to facilitate this battle, he has helped 7 lakh families. Friends, 7 lakh families, a true Indian with patriotic fervor. He has taken care of daily workers, healthcare employees by contributing 101 crores to PM Relief Fund, and all in all, he's donated 200 crores. I have no words to express our appreciation for your acts of munificence and nobility of thoughts and action. Kudos to you and the whole group, sir. Truly amazing. And Anilji, before I hand it over to you, sir, let me put this up to you. हमने धरती और आसमान में सहज दिख रहे अवसरों और आजमा कर बुलंदियों पर पहुंचते कईयों को देखा है, पर पाताल में उतरकर फिर शीर्ष शिखर पर पहुंचने की आपकी दूरदर्शिता और व्यवसायिक हुनर के वाकई हम कायल है. Over to you, Anil ji. जीतू परिवार, मेरे भाई बहनों, आप सभी ने हमको इसके लिए यहाँ इनवाइट किया. मैं बहुत आभारी हूँ. मैं जब भी आप लोगों के परिवार में आया हूँ, मेरे को लगा मैं इसका हिस्सा हूँ और मेरे को इससे ज़्यादा कभी खुशी नहीं हुई. मेरे को कल ही उन्होंने बताया, 2 दिन पहले ही बताया, और मैंने कहा इट्स ए प्लेजर कि आप लोगों के बीच में मैं कोई दूरदर्शिता नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों के का ही एक वन ऑफ देम हूँ. तो मैं तो खाली अपना अनुभव ही बता सकूंगा. मैं आपको कोई ज्ञान और कोई डायरेक्शन नहीं दे सकूंगा. खाली जो मेरे अनुभव हैं, उनको जो मैं अपनी लाइफ में उतार रहा हूं, उनको आपके सामने रखूंगा और उनसे जो कुछ भी आपसे मैं सीख सकूं, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी. मैं भी, जैसे उन्होंने दोहा चालू किया, मेरे को भी 2-3 दोहे बहुत पसंद हैं, तो मैंने कहा मैं भी एक दोहा आप लोगों को बोलूं. शायद आपको सब लोगों को ये दोहा मालूम है, लेकिन हम लोग रिपीट करते हैं तो इससे एक मन में अच्छा लगता है. कबीरदास जी के दोहे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं. कबीरदास जी ने कहा है, तुलसी इस जग आई के कर लीजिए 2 काम. मैं गा के बोलता हूं. तुलसी इस जग आई के कर लीजिए 2 काम, देने को अन्नदान भला, लेने को हरि नाम, लेने को हरि नाम. तो इस जग में आके तुलसीदास ने बहुत सिंपल बताया कि सबसे बड़ा अन्नदान है, कोई भूखा नहीं रहे, उसको ध्यान रखो, और हरदम परमात्मा को आपका ध्यान रखो. ये 2 बातें कबीरदास जी ने बताई. तो मेरे को आप लोगों ने इनवाइट किया, मेरे को बहुत 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 अच्छा लगता है. अब मैं आप लोगों को, एक तो कोविड का आज ये इतना बड़ा
इतना बड़ा संकट हम लोगों के ऊपर आया, विपत्ति हमारे ऊपर आई और इतना कहर आया, इसके बारे में सोचना पड़ता है कि क्यों आया। प्रलय आई है, कुछ न कुछ ईश्वर की मंशा है। ये भी भगवान के भेजे हुए दूत है, कोरोना भी भगवान का भेजा हुआ दूत है। उनकी जो वो क्या करना चाहते हैं वो करेंगे। हम अपने आप को प्रिकॉशन लें, अब हम उस चीज से सीखें, उसे समझें और अपने आप को दोबारा सही करें और उसमें हम आगे बढ़ाएं। हम और आप सारे लोग लगे हुए हैं। ये कोरोना हमारे यहाँ का नहीं है, ये कोरोना हमारा खान पान ऐसा नहीं है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है जो इस तरह की बीमारी या इस तरह की चीज हमारे यहाँ आ सकती है। ये कहीं ना कहीं से आई हुई है। इसको हम जिस हिसाब से हम फाइट कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदर्शी थे, जिन्होंने बहुत पहले बहुत आगे से बढ़ के इसको बंद किया और ये सारी दुनिया में इसको सराहा जा रहा है। हमारे यहाँ की दवाइयाँ भी बाहर गई हैं, तो हिंदुस्तान की एक पोजीशन बहुत अच्छी बनी है। हमारे यहाँ बहुत दुर्भाग्य से बहुत बुरा हो गया, लेकिन फिर भी और लोगों की तुलना में हम काफी बचे हुए हैं, हम काफी बचे हुए हैं। जो भी मेरे को ऐसा 2 महीना पहले गवर्नमेंट ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट था, मुकेश अंबानी भी थे, टाटास भी थे, सारे के सारे लोग, ऐसा कोई भी नहीं था, मैं कोई भी ऐसा नहीं था जो नहीं थे। मैंने इतना जोश कभी नहीं देखा। 20 के 20 इंडस्ट्रियलिस्ट ने सबने आगे बढ़ के कहा कि जो भी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है उसको हम करेंगे और उसी हालत में लोग लगे हुए हैं। हम लोग भी सब हम लगे हैं, आप भी लगे हैं। ईश्वर की इच्छा होगी तो इससे हम आगे निकलेंगे, इस फाइट से हम बाहर निकलेंगे। लेकिन ये हम लोग के लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आई है। उसके पहले कि मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं, मेरा दिल बहुत दुखता है। मैंने सबसे पहले इस बात को लगाया था कि जो रोज के दहाड़ी के लोग हैं, रोज जो कमाते खाते हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, खोमचे वाले हैं, मालिश वाले हैं, जो रोज का काम करते हैं, वो बहुत तकलीफ में आ गए हैं। उनको हम हर हालत में सपोर्ट करें। हम भी हमारी जितनी भी ताकत है उसके हिसाब से हम लगे हैं, हर हालत में कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी को 2 वक्त की रोटी मिले। उसके बाद की समस्या आती है कि इन सबको घर जाना है। हमारी बहुत इच्छा है कैसे न कैसे ये घर पहुंचे। रूल में जो भी टेक्निकली हम रिलैक्स कर सकते हैं, उस रूल को रिलैक्स करके ये सब अपने अपने घर चले जाएं। मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन भी लूंगा, लेकिन इसके पहले जो मेरी मन की बात है वो सब मैं बताऊं। तो ये कोविड के बारे में जो कुछ भी आप लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, काफी आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि कंट्रोल में आ जाएगा। फिर जो भी हम विधि के विधान हैं, जो भी आएगा उसको हाथ जोड़ के उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बिजनेस में वापस कैसे आए। हम जो रोजगार में लगे हैं, जिस काम में लगे हैं, इससे बड़ा काम तो कुछ है ही नहीं कि हम अपने रोजगार में वापस आए। लोग आने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं अपनी बात बता सकता हूं कि मैं अपने रोजगार में कैसे वापस आ रहा हूं। मेरा काम जो भी है वो ऑयल बनाने का है, मेटल बनाने का है, हम ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं, थोड़े टेक्नोलॉजी में। इन सारे कामों के सब सीईओ को बुलाकर हमने बहुत विचार विमर्श किया कि एक टाइम था कि जब हम शावर से नहाते थे, आज ये दिन आ गया है कि हम 1 बाल्टी पानी से नहाएं, उसी से कपड़े धोएं, उसी पानी से हम अपने रसोई भी चलाएं और उसी से सारा काम करना है। और भगवान ने हमें इतनी क्षमता दी है कि हमारे में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप और हम सब लोग बैलगाड़ी से लेके हवाई जहाज तक किसी में भी सफर करके अपना रास्ता पूरा कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज हम लोग के सामने आया है। कमर कस के इस चैलेंज को हम लोग को लेना चाहिए। मैंने अपने सभी आदमियों से बात की कि भाई हमको एक मार्जिन तो चाहिए, उस मार्जिन के बगैर काम नहीं हो सकता है।
उसके अलावा 4-5 हेड बनाओ कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ पीपल, ये 8-10 ये ब्लॉक बना के हमारा इतने में तो माल बिकेगा, इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं और इसमें हमारा गुजारा चलेगा। इस तरह की बात सोचकर हम अपने बिजनेस को चला रहे हैं और हमें, आपको विश्वास नहीं होगा, पूरा हमारे 1 लाख लोग काम करते हैं, सब में इतनी जबरदस्त एनर्जी आई है। हम आप और क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि हम अपनी एनर्जी डेवलप कराएं, लोगों में एक उत्साह पैदा कराएं, एक पैशन, एक जुनून कि इस चीज को भी हमको आगे बढ़ाना है। मैंने आप लोगों को देखा है कि जिस तरह से आप लोगों में एनर्जी पैदा करते हैं, वो एनर्जी पैदा करने का टाइम आया है, तो ये मैं कर रहा हूं। जैन समाज को आप देखें तो जैन समाज और अग्रवाल समाज एक ही जगह से निकले, अग्रोहा से निकले। मैं कुछ डिटेल भी लिया हूं यहाँ पे कि अग्रोहा से निकले, अग्रवाली थे, उसके बाद 1000 साल पहले, 700 साल पहले, मेरे को मालूम नहीं है, दिवाकर महाराजा हुए थे। उनके पास एक संत आए थे, बहुत बड़े संत, वो जैन संत थे, स्वामी लोकाचार्य। उन्होंने जैन धर्म के बारे में उनको शिक्षा दी, वो बहुत प्रभावित हुए और उनके साथ में सारी कम्युनिटी जैन समाज में गुजरी। जो जैन समाज में गुजरी, उन्होंने और बहुत तप किया, अपने आप को बहुत डिसिप्लिन किया और एक अपने आप में एक अच्छा एक ऑर्बिट खड़ा किया। वो ऑर्बिट पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज आप देखेंगे तो शुरू से आखिर तक, चाहे मुगल आए, चाहे चाणक्य के टाइम में भी, हम लोग बिहार के हैं, बिहार में भी जितने राजा हुए और वहां से लेकर जो भी राजा आए, उसके बाद 500 साल मुगलों ने राज किया, 150 साल अंग्रेजों ने राज किया। सब ने सबसे ज्यादा जिस पर विश्वास किया वो जैन कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, इनके ऊपर विश्वास किया। उनके कभी धोखा नहीं हुआ है, चाहे वो भामाशाह थे, चाहे कोई भी जो थे। आप देखेंगे सारे इतिहास में हम लोग अपनी काम में हरदम खड़े उतरे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को लेकर ही हम आगे चल रहे हैं। मेरी जर्नी जो है, मैं बिहार का हूं, अभी भी बिहार मेरे से बाहर निकलता नहीं है। बिहार में जब मैं रहता था तो मैंने, हमारे घर के पीछे में गुरु गोविंद जी साहब का जन्म स्थान था, तो वहां लंगर में हम खाना खा लेते थे। हमारे बगल में 1-1.5 घंटे की ड्राइव थी जो कि पावापुरी थी, बोधगया था, राजगीर थी। यहाँ पे हम रात दिन उसी माहौल में पड़े। उसके बाद आगे आप 2 घंटे की ड्राइव पे हम जाते थे तो जनकपुर था। तो मेरे सीताराम जी की बात कर लीजिए, चाहे आप गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर लीजिए, चाहे बुद्ध भगवान की बात कर लीजिए, चाहे जैन कम्युनिटी के महावीर की बात कर लीजिए, मैं इन चारों के बीच में बड़ा हुआ हूं। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। हम हरदम ऊंचा सोचते थे, अच्छा सोचते थे। माँ बाप हमारे पिताजी वहां छोटा कारोबार करते थे, वहां से हम बंबई आए, बंबई में कारोबार किया, लेकिन एक के बाद एक कम से कम भी 10 बिजनेस में फेल हो गए। हर बिजनेस को बंद करना पड़ा। ऐसा टाइम आया था कि सुबह फिर क्या करेंगे, लेकिन हिम्मत मर्दे खुदा, कभी भी सोचा नहीं। 2 साल 3 साल नौकरी भी की, उसमें भी कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, एंटरप्रेन्योर की तरह ही काम किया। उसके बाद जब हमने काम चालू किया, मेरे को ये एल्युमिनियम स्क्रैप, कॉपर स्क्रैप का काम अच्छा लगता था। उससे मैंने आगे बढ़े तो मैंने केबल का बिजनेस चालू किया। केबल के बिजनेस के बाद मेरे को माइनिंग बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें हम लगे। लेकिन ये आपको मैं बता सकता हूं, कभी भी कितना पैसा मेरे पास है और कितने का काम करना चाहिए, उस समय मैं सोचता ही नहीं था। अगर कुछ काम सामने आया तो मेरे को लगता था कोई ना कोई रास्ता तो निकल जाएगा, लेकिन काम को आगे बढ़ाओ। इस तरह से बढ़ाते हुए हम
3-4 साल मैं अमेरिका में भी रहा, वहाँ पर भी मेरी लड़की का जन्म हुआ। उसके बाद हम लंदन आए, लंदन में 22 साल से मैं हूँ, वहाँ पे भी वही पुराने अपने वैल्यूज थे उनको साथ में लेके, लेकिन एंटरप्रेन्योर थे, हर आदमी रिस्क लेते थे। मेरे को हरदम लगता है कि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, और रिस्क आप लोग, लाइफ तो इतनी छोटी सी है, इसी में कर गुजरना है। हम लोग, मेरे को तो जैन समाज को मैं देखता हूं तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अचीवर्स हैं, आप लोग त्यागी हैं, आप लोग तप करते हैं। तो इस तरह की जो आप लोगों की भावना है उससे मेरे को, मैं बहुत प्रभावित होता हूं। और हम लोग सब एक ही हैं, आपस में शादियां भी होती हैं, एक दूसरे के काम में भी आते हैं। तो इस तरह से करते 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 आज मेरे को हरदम लगता था हिंदुस्तान में बहुत दम है। 1.4 बिलियन लोग यहाँ रहते हैं। हिंदुस्तान, दुनिया की 20%, 18% पॉपुलेशन यहाँ पे है। और हमारा, आप अगर ब्लूमबर्ग के टीवी पे बैठेंगे तो आपको 40 से 50% टाइम उस स्क्रीन पे एंकर जो कि इंटरव्यू ले रहा है वो भी इंडियन दिखेगा, जो इंटरव्यू दे रहा है वो भी इंडियन दिखेगा। तो ये बहुत बड़ी काबिलियत है हमारे में, हम सबके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। आप दूसरे कम्युनिटी के लोग कंफर्टेबल नहीं है, हम लोग कॉलेज में भी आप जाएंगे तो हम इंडियन, हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम लोग कहीं भी रहेंगे तो मिलजुल के काम कर लेंगे, ये हमारी बहुत बड़ी खूबी है। आने वाले दिनों में मेरे को लगता है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा टाइम आने वाला है, अच्छा टाइम आने वाला है, ये बहुत आगे गुजरेगा। देश के लिए हिंदुस्तान में जब इतना इंपोर्ट होता है तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास हर तरह की डेमोक्रेसी कंट्री है। इस तरह की पोजीशन हमारे पास, हमारे जो मौसम है, हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छे हैं, तीन साइड हमारे यहाँ समुद्र है। मैंने गवर्नमेंट को बार बार 4-5 चीजों के लिए कहा है और वो गवर्नमेंट उस पर अमल भी करती है। प्रधानमंत्री जी सामने से भी बोलते हैं। हमने कहा कि हमारे यहाँ एक तो है बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म करना बहुत जरूरी है, और देश की गरीबी मिटनी चाहिए। ये इस 3 चीजों के लिए जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, हमारे यहाँ हमारे बलदोता जी बैठे हुए हैं। मैंने देखा मनोज साहब हैं, मैंने देखा मनोज साहब का नाम आया। हमने देखा मोतीलाल ओसवाल जी बैठे हुए हैं, वल्लभ भाई जो हमारे गुरु हैं वो बैठे हुए हैं, उनका मैं लेक्चर हरदम सुनता रहता हूँ। आप बहुत ही अच्छा, भगवान की कृपा है उनके ऊपर जो ऐसा बोलते हैं। आप लोग सबसे बड़े बड़े उद्योगपति के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी जो आप लोगों में है वो बहुत बहुत कम देखने में आती है। तो जो मैं आ रहा था अपनी बात पे गवर्नमेंट, हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्स, हमारे यहाँ तेल के भंडार हैं, हमारे यहाँ सोने के भंडार हैं, हमारे यहाँ कोयले के भंडार हैं, हर तरह का यूरेनियम है, हर तरह का नेचुरल रिसोर्स हमारे यहाँ है। आज हम $500 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, वो $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। हमारी गरीबी कभी मुक्त नहीं होगी। तो इन सब चीजों को हम अपने यहाँ ही, हमारा जो देश है वो एंटरप्रेन्योर का देश है। गवर्नमेंट बार बार थक गई कि काम गवर्नमेंट कर लेगी। गवर्नमेंट का काम बिजनेस चलाना नहीं है, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट बिजनेस नहीं चलाती है। उनका काम है टैक्स कलेक्ट करना, उनका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उनका काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनका काम है हेल्थ प्रोवाइड करना, उनका काम है बॉर्डर सिक्योरिटी को कायम रखना। ये सब काम उनके हैं। बिजनेस चलाना बिजनेसमैन को ही देना पड़ेगा, और बिजनेसमैन का मतलब खाली हम ही लोग नहीं है। कॉर्पोरेटाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी हिंदुस्तान में भी जैसे आईटीसी चलती है, हिंदुस्तान में L&T चलती है, हिंदुस्तान में HDFC बैंक चलती है, ये भी सब प्राइवेट है। और पूरी दुनिया में 80% बिजनेस कॉर्पोरेटाइज है, जो कि शेयर होल्डर चलाते हैं, इंडिपेंडेंट बोर्ड है। 20% बिजनेस एंटरप्रेन्योर चलाते हैं। तो ये अनुपात हिंदुस्तान में होना चाहिए, और गवर्नमेंट सुन रही है। गवर्नमेंट को नंबर 1
नेचुरल रिसोर्स, इसको खोलना पड़ेगा। इसमें करोड़ों लोग लग जाएंगे काम में। नंबर 2, गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, वी हैव नो बिजनेस टू बी अ बिजनेस, तो बिजनेस को उनको निकलना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द बैंक। नंबर 3, हमने कहा है कि हिंदुस्तान में आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हिंदुस्तान और अमेरिका, ये वेस्टर्न वर्ल्ड आज पूरे के पूरे चाइना के अगेंस्ट हो गए हैं। इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को आई है। उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग देखें, उनके एम्बेसी में जाके मिलें, अपनी एम्बेसी में जाके मिलें, देखें, अमेरिकन एम्बेसी में मिलें और पता लगाएं। आप तो सारी दुनिया में फैले हुए हैं कि क्या बिजनेस हम हिंदुस्तान में उनका लेके आ सकते हैं। हम सस्ता माल बनाएंगे, अच्छा माल बनाएंगे और अच्छी सर्विस करेंगे, वो बिजनेस हम यहाँ लेके आवें। हमको 2 चीज की हरदम तकलीफ रहती है, वो ब्यूरोक्रेसी की, कि जितने कम से कम अफसरशाही कम हो, इसको हम देखें। अफसरशाही के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हमारे यहाँ रेड टेपिज्म नहीं है, रेड कारपेट है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज के दिन हर चीज हम करेंगे। और आपके यहाँ तो जितना एजुकेशन पे जोर दिया गया है, हमारे सारे बच्चे फुल्ली एजुकेटेड हैं, उन लोगों को टेक्नोलॉजी से ही काम करना है। खाना भी खाएंगे तो टेक्नोलॉजी से ही खाएंगे, हर चीज इनोवेशन की तरह से देखेंगे, तो हम दुनिया के सबसे आगे से आगे रह सकते हैं। तो हमने कहा कि चाइना का जो बिजनेस आ रहा है वो यहाँ पे आए। हमने उसके बाद कहा कि हिंदुस्तान जो है 700 डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है, 700 डिस्ट्रिक्ट हैं। 700 डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ कलेक्टर बहुत सक्षम है। 28 साल का लड़का है, उसकी एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है, उसको बहुत पक्का बना के लाया गया है। अगर उसको हम इंपावर करें, जैसे चाइना में मेयर बोलते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट का मेयर हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट का सीईओ हो गया, उस डिस्ट्रिक्ट में वो बिजनेस प्लान करे कि भाई हमको यहाँ एजुकेशन, इसमें हमारा इंडस्ट्री, हमारे स्पोर्ट्स, वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अपना बिजनेस प्लान करके फाइनल अप्रूवल वो गवर्नमेंट से लेके आए और उसका काम रहे कि वो वहां पे डेवलपमेंट करे। क्योंकि वो वहां बैठा हुआ है, जमीन अक्वायर करने में, लेबर प्रोवाइड करने में, लोकल डिस्प्यूट होने में, एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने में, सारी उसकी जिम्मेवारी होगी और ज्यादा से ज्यादा एम्पावर उसको किया जाए। हमने देखा सबसे ज्यादा का जो फायदा हुआ है वो है माइक्रो फाइनेंस। आज दुनिया की सारी बैंकें माइक्रो फाइनेंस में जाना चाहती हैं। माइक्रो फाइनेंस में 85% की रिकवरी है, जो कि अनहर्ड ऑफ बाय अदर सेक्टर। जो गरीब लोग होते हैं वो पैसा चुका देते हैं। अगर जिसके पास आधार कार्ड है उसको 2 लाख 2.5 लाख रुपया का लोन इमीडिएटली दे सकते हैं। वो एक सिस्टम अपने उसको पुश करें। आप लोगों के अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप बैंकों में जाएं, उनको बोले हम जगह देंगे, हम आपको लिस्ट देंगे नाम की, जो कि लोग आए, किसी को ऑटो रिक्शा बनाना है, किसी को ब्यूटी पार्लर शॉप खोलना है, किसी को भैंस खरीदनी है, जिसको भी जो करना हो उसको वो माइक्रो फाइनेंस मिले, जिससे कि इंडिपेंडेंटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। तो मेरा गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस, नेचुरल रिसोर्स, कलेक्टर्स को पावर देना, चाइना इंडिया में जो आज प्रोग्रेस हो रही है उसको देखना, और सबसे जरूरी बात जो हम लोगों को लगती है कि डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बहुत, हम दोनों गवर्नमेंट के ही बच्चे हैं। हम दोनों को, जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनको एक्सेस ज्यादा होता है, हम लोगों को कम होता है, उनको ड्यूटी रिलीफ मिल जाती है, हमें नहीं मिलती है। अगर सारा बिजनेस अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वो भावना नहीं रहेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, तो इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो मेरे को लगता है ये हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगता है। हिंदुस्तान में आगे आने वाले दिनों में भी बहुत जो अपॉर्चुनिटी है, आप सब लोगों को लगता है भाई आज की बात करो, कल की बात नहीं करो, आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो भी जिस हाल में आप हैं उस हाल में ही प्रोग्रेस हो सकती है। एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, एक कुछ कर गुजरने की हिम्मत चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो वो हम अपने लिए नहीं करते हैं। हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें ये चीज जरूर देखते हैं कि इसमें देश का फायदा हो रहा है क्या, समाज का फायदा हो रहा है क्या, इसमें हम कुछ दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं क्या।
तो ये बातें सब मेरे दिमाग में आती हैं। आने वाले दिनों में जो तकलीफें आ गई उसका तो बहुत ही बड़ी तकलीफ आई है, लेकिन इससे आगे आने के लिए सबसे पहले हम लोग को गरीब, जो सब गरीब से गरीब तबके वाले लोग हैं, उनको हम देखें, फिर अपने बिजनेस को हम आगे बढ़ाएं। इस बिजनेस को जितना भी हम आगे बढ़ा सकते हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। बैक टू बिजनेस जितनी जल्दी हो सके हम लेके आए। आनंद जी, मेरा ऑक्सीजन जो भी था कल वो कम हो गया। अब आप कोई क्वेश्चन देंगे तो मैं जवाब दूंगा। परफेक्ट साहब। उसके पहले आई एम सॉरी, मुझे काफी नोट आया है कि मैंने जो बताया था वो काफी नेटवर्क का इश्यू था, तो मैं फिर थोड़ा सा वेदांता के बारे में बताना चाहूंगा, तो आप मुझे 1 मिनट और दें ताकि उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देंगे, प्लीज। ठीक है। Sorry audience, I understand that there was an issue with network from my side, so I'll rather repeat again what I was mentioning about Vedanta. The end part of Holy Veda is called Vedanta, which prescribes path of human liberation from samsara. It glorifies sacrifice as the only means to attain liberation. Anil ji, a true Vedantian, has donated crores of his wealth to help COVID-19 initiatives and relief funds. As a forerunner to facilitate this battle, he has helped 7 lakh families. A true Indian with patriotic fervor, he has taken care of daily workers, healthcare employees, contributing 101 crore to PM Relief Fund. And in all, he has contributed 200 crores for the COVID fund this time. I have no words to express our appreciation for your acts of munificence and nobility of thoughts in action. Kudos to you, Anil ji. And friends, something which I'd like to highlight again, it says that Vedanta had contributed over 2 lakh crore rupees to the state exchequer by way of royalty, taxes, and cess. By no means that any other company would match to the level where Vedanta is today. Vedanta contributes 1.5% of GDP. This is a phenomenal number, friends. Also, the biggest part, which is why Anil ji is known for what Anil ji is today, he's pledged 75% of his wealth for charity. This is incredible. Anil साहब, ये चीज हम लोग आपकी जितनी भी सराहें उतनी कम है. And Nandagar is a program. He supports women and children, setting up Nandagar across the country. Bihar to London, what a journey. Priya Agarwal is his daughter, who's extremely also passionate about giving back to the society, and she works tirelessly for stray animals. Agnivesh is a son who's also into business with Anil ji. Friends, अनिल साहब, आज आपने जो भी बताया, मैं पहली बार देख रहा हूं आप नोट्स रखे हो, तो हम चाहते थे कि आप जो नॉर्मली मैंने इससे पहले दो कॉन्फ्रेंस जो लंदन में किए, मैंने चाहे कितने भी नोट्स आपके सामने रखे हो, आपने मन से बोला और वो नोट्स का तो कोई फायदा नहीं रहा था. आज मैं पहली बार देखा आप नोट्स सामने रखे हो. बड़ी खुशी हुई. मैं नोट खाली वो जो सबके नाम मेरे को याद नहीं थे और इतने डिग्निटरीज थे, तो मेरी दिल से इच्छा थी कि उनका नाम मैं लूं. वो नाम को छूट नहीं जाए, क्योंकि सारे मेरे मित्र हैं और सबको मैं इतनी ऊंची भाव से देखता हूं कि ये लोग सही में कर्मयोगी हैं. आपके यहाँ जितने भी नाम मेरे पास आए सारे कर्मयोगी हैं और इतने सिंपल हैं, अपने भाव में, स्वभाव में अपनी कम्युनिटी को लेके चलते हैं. तो मेरे को लगा कि उनके नाम लेने चाहिए, उन्हीं के लिए उनका नाम मैं सामने रखता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद साहब. Now, हमारे गणपत भाई चौधरी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है जीटो के, हमारे साथ वल्लभ भाई वगैरह देख रहे, बट वो सामने ना आ पाए. बट आपने बल्डोरा जी को तो पहचान लिया. बल्डोरा जी साहब है हमारे साथ, सुगाल साहब है, कमलेश भाई है और अनिल भाई. काफी जन है जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. बट अनिल साहब, बिफोर दैट दे गेट टू द क्वेश्चन, I have people from 13 countries right now, and they would also love to hear from you. 2 important things. I was flooded with questions, Anil bhai, and these 2 questions are something which I'd like to put it before I pass on the mic to them. Number 1, you've always been known for big bets. You've never done small bets all your life. Now, given the situation of where we are with COVID, tell me, would you still be the same guts of what Anil Agarwal had, and will you still be betting high?
आदमी का स्वभाव बदलता नहीं है। आदमी का मैंने देखा है बहुत साधु महाराज लोग भी वो क्या करते हैं, वो जंगल में चले जाते हैं कि अब कुछ काम नहीं कर, अब नहीं करेंगे, सन्यासी हो गए। फिर वहां जाके भी वो झोपड़ी लगाते हैं, फिर बाड़ बनाते हैं, फिर बाड़ बना के उसकी जमीन खरीदते हैं, फिर उसमें कुछ उपजाना चालू करते हैं, फिर वो बिजनेसमैन हो जाते हैं, अच्छी तरह से ही करते हैं। तो आदमी का जो स्वभाव है वो तो चलता ही रहेगा। स्वभाव पहले हम खुद करते थे, अब करवाते हैं, लेकिन उसमें जितनी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उतना उतना उसमें शुद्धता आती आती है। उसमें हरदम यही रहता है कि इसमें दूसरे का भला कैसे हो जाए, देश का भला कैसे हो जाए, कुछ ऐसा करें जिसमें कि समाज हमारे साथ हो जाए, ये बात की भावना और बढ़ती चली जाती है। परफेक्ट। बट आप वही बेट्स वापस बड़े बेट लेंगे जो आप पहले लेते थे? बड़ा छोटा तो कुछ है नहीं, इतने बड़े ब्रह्मांड में हम लोग कुछ भी बड़ा करेंगे वो छोटा ही है। लेकिन आप जब तक लाइफ में अचीवर्स नहीं बनेंगे, अचीवर्स तो बनने करेज तो हम और आप तो करेज लेके ही पैदा हुए हैं। और जो भगवान ने हमको भेजा है करेज के साथ में, अगर उसको हम बगल में रख देंगे और उसको पॉकेट में रखे रहेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट, आई एग्री साहब। आदमी को और वो तो उसका नेचुरल स्वभाव हो जाता है। हाथी को जितना खाना है उतना ही खाएगा, उसको छोटा छोटा देंगे कैसे खाएगा, भूखा रह जाएगा। तो जब स्वभाव में खाना बड़ा हो गया तो बड़ा ही चलता रहेगा। गुड मैसेज साहब। हम सर आई पास इट ऑन टू गणपत भाई चौधरी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। गणपत भाई, कैन यू अनम्यूट द स्क्रीन प्लीज? आवाज आ रही है? यस, गणपत भाई सुनाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग जय जिनेंद्र एंड थैंक यू वेरी मच अनिल जी अग्रवाल साहब, आप आज हमारे बीच में पधारे। आपको सुनने का अपने आप में जिंदगी में एक लावा है। हमने बेंगलोर में सुना, हमने लंदन में 2 बार मिले, आपको सुना, और जितनी बार सुनते हैं इतना अंदर एक एनर्जी और ग्लूकोज, मैं ग्लूकोज बनाता हूँ कौन से, तो मुझे लगता है मैं ग्लूकोज से लोगों को इंस्पायर करता हूँ या मतलब उनको शक्ति देता हूँ। पर आपकी आवाज और आपके शब्दों से इतनी शक्ति आती है हम सब में कि मैं उसकी बयान नहीं कर सकता हूँ। तो आप पधारे, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सुन के जितने भी लोग आज इस सेमिनार को सुन रहे हैं वो सब लाभान्वित होंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है, सर आप बहुत बड़ी बड़ी बैट लेते हैं, मैं छोटी छोटी बैट लेता हूँ और छोटे मोटे एक्विजिशन करता हूँ। मैंने हिंदुस्तान में 16-17 एक्विजिशन छोटे मोटे किए। और एक बार ऐसा आया 2010 के अंदर में एक गोरी कंपनी फ्रांस की आई और उसने मुझे एक लालच आवे ऐसा एक ऑफर दिया कि भाई आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, मैं आपको ये XYZ देता हूँ और आप इस बिजनेस से निकल जाओ और हमको दे दो। फिर मैंने भी मेरा दिमाग लगाया कि बिजनेस तो प्रॉफिट बनाना वही बिजनेस है, सेंटिमेंटल अटैचमेंट तो बिजनेस से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस किया ही मैंने पैसे कमाने के लिए था और वो पैसा दे रहा है तो मैंने वो बिजनेस को बेच दिया। तो उस टाइम में मेरे एक मित्र ने कहा था कि बिजनेस तो आप बेच रहे हो, पर एक बार आप सेफ जोन में चले जाते हो और आपके पास बहुत बड़ी फिक्स डिपॉजिट या बैंक में बैलेंस हो जाता है तो रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये रियली में थोड़ा इम्पैक्ट मेरे पर भी हुआ है, जो मैं रिस्क खेलता था। जैसे आप तो बड़ी बैट करते हैं, हम छोटी बैट पर हमने भी रिस्क से जो भी बनाया, आपने जैसे कहा ना बिना रिस्क लिए तो कोई कुछ नहीं बन सकता, पर अभी मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो गई है। तो मैं क्या ऐसा करूं या क्या ऐसा सोचूं कि वापस मैं पुराना गणपत चौधरी बन जाऊं और वापस, जैसे अनंत जी ने आपको पूछा, स्वभाव है पर स्वभाव थोड़ा बदल गया है, तो क्या करना चाहिए कि मैं मेरे पुराने स्वभाव में आ जाऊं? दिस इज माय क्वेश्चन। कुछ बदला नहीं है, कुछ बदला नहीं है, कुछ वो है, वो का वो है, आपका मन का भ्रम है। आप किसी पेंटर को बोलो, वो पेंटिंग करता है कि तुम आज से पेंटिंग नहीं बनाओ, तुमको हम 50,000 रुपये में दूंगा, वो मानेगा नहीं। वो बोले आप पेंटिंग बनाना मेरा स्वभाव है। आप खेती वाले किसान को बोलो कि तुम हल छोड़ करके खेत में नहीं जाओ, उसको सुबह उठ के हल को साथ में लेके उसको खेत में जाना ही है। हम और आप अब कहाँ चल, इतनी छोटी सी जिंदगी है, अब दूसरा कुछ क्या करेंगे? खुद तैयार होंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, लोगों को बताएंगे। ये है कि आदमी का धर्म बदलता रहता है। एक टाइम हम अपने हाथ से करते थे, अब हम करवाएंगे, लेकिन हम अपनी सोच तो बदलेंगे नहीं। ये बात सही है कि कर्मयोगी और सन्यासी में क्या फर्क है? दोनों एक ही हैं।
दोनों एक दूसरे से बढ़ के हैं, लेकिन कर्मयोगी भी अपना काम में लगा रहता है इसीलिए कि वो भगवान का ही नाम लेता रहता है। उस काम में भी उसको वही आनंद आता है जो कि भगवान का नाम लेने में आनंद आता है। सन्यासी भी एक ही काम करता है, उसका अनवरत काम चलता रहता है कि हमारे समाज का और कैसे विकास हो, और लोग सुख और संपत्ति कैसे रहें। तो ये आपका स्वभाव है कंप्यूटराइज जी, आपका स्वभाव बदली नहीं हो सकता है। ये है कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि हम फंस जाएं। मैं हरदम बोलता हूं कि कोई भी काम ऐसा करें जिसमें कि देश कोई भी राजद्रोह नहीं हो जाए, कोई टैक्स का मामला, कोई लीगल मामला, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय नहीं है। हम लोग लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी राजद्रोह का मामला आ जाता है तो उस समय हमारी एनर्जी भी खराब हो जाती है और हमारा जो हमारे में एनर्जी है वो लेवल कम हो जाता है। तो मैं हरदम कोशिश करता हूं, लोगों को बताऊं भी कि हर चीज का रास्ता है। आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसका रास्ता है, लेकिन आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। विद इन द लॉ आपको सारे लॉ तोड़ दें, विद इन द लॉ। तो इस तरह का आप सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। मैं आपको विश करता हूं आप मेरे साथ आगे काम कीजिए। मैं आपको देख के समझ में आ रहा है जो एक्विजिशन वाले आदमी होते हैं वो बहुत अलग ढंग के होते हैं। आपको आगे बढ़ के काम करना ही है, फ्रंट फुट पे ही काम करना है। बैक फुट पे कहां काम करेंगे गणराज जी आप? हो सकता है बैक फुट पे यही काम करेंगे कि जो आपके पास आदमी तैयार हो गए हैं, क्योंकि हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम काम कराते हैं। एक टाइम में मैं काम करता था, आज मैं लोगों से काम करा लेता हूं। तो वो आपको भावना रखनी चाहिए। You have to die with the boots on. Thank you, Anil Saab. This is a fantastic suggestion. Ganpat bhai, you got a very good offer. You couldn't deny for this offer. Anyway, Anil bhai, हमारे साथ बलडोटा साहब है जो आज माइनिंग में, आयरन ओर में आज बहुत मानी। I'm sure you know our leader very well. So बलडोटा साहब हमारे लीडर हैं। हम लोग एक तरह का काम करते हैं। बलडोटा जी ने इतने छोटे टाइम में इतनी बड़ी रिस्क ली है, काम किया है। हिंदुस्तान में इतनी तकलीफों के बावजूद ये खड़े रहे हैं। मैं इनको रियली अप्रिशिएट करता हूं। मैं जब इनका देखता हूं बैकग्राउंड, क्या क्या तकलीफें नहीं आई हैं, लेकिन कभी इनके चेहरे से मुस्कुराहट तो कभी हटी नहीं। हमने जब तक कि ये इतना बड़ा हौसला लेके चलते हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को इनको आगे करके समझना चाहिए कि हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अपने लिए क्या करते हैं, इनके पास तो 10-20% ही नहीं आता होगा, 60-70% तो गवर्नमेंट को ही आता है। प्लस जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, ये आयरन ओर बनाते हैं, उससे स्टील और बनता है। तो ये एक एग्जाम्पल है और गवर्नमेंट को भी इससे सीखना चाहिए। Baldota Saab, your question please. You need to unmute your mic, Baldota Saab. I have already done. Yes, we can hear you now. नमस्ते अनिल साहब, जय जिनेंद्र सत्य। बहुत खुशी हुई आपको देख के और आपको सुन के। और आपने जो पहली बात कही कि बेरोजगारी के लिए कुछ करना चाहिए, अभी जब कोविड हुआ है और देश में इतनी बड़ी आपत्ति है तो बेरोजगारी के लिए कुछ करना चाहिए। जॉब क्रिएशन इज द नीड ऑफ द आवर। देयर आर 400 to 500 cases where exploration has been considered and completed and applied for mining lease. Substantial time has gone since 2015. These applications are eligible, but government is not taking any action. My question to you, sir, is should the industry not ask government now for grant of these 10A to B cases as deemed mining leases as an emergency? Now, there is a real emergency. We have to give jobs. And if government takes action on this 10A to B case, things will be better. So many people can be immediately employed. I think with your resources at high levels, you will be able to do something. And what are your views on this? नो ये इतना बड़ा फॉरम है, इसमें हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। आपके जैसे बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट की मंशा है कि इनको भी हम ऑप्शन करें। ये बहुत गलत कदम है। बहुत जोर से ये लोग लगे हैं कि इनको जो आपने मेहनत की, एक्सप्लोरेशन किया, काम किया, लाखों करोड़ रुपया खर्चा किए, उसको छोड़कर ये गलत काम हो रहा है। ये सब साथ मिलकर अगर बात करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के अभी तक जो मन में है कि पता नहीं किसने डाला है, इसको हम री ऑप्शन करेंगे।
तो ये हो रहा है वो बहुत गलत है। हजारों मायने हजारों लोग इसमें फंसे हैं और ये गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया है। आपके पास कोई इन बिटवीन कोई सुझाव हो तो ये तो वो बिल्कुल मानेंगे नहीं आज के दिन में कि एज इट इज वो माइनिंग लीज दे दें। हालांकि वो माइन आपकी है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इन बिटवीन कोई रास्ता कोई आपके पास आइडिया हो तो आप अगर उनको पास लेके जाएंगे तो वो तैयार है सुनने के लिए। अपने और अलग फॉर्म में बात करेंगे, अलग फॉर्म में बात करेंगे डिटेल से, बट मैं छोटी सी बात में इतना मैंने आपको बता दिया। अच्छी बात। Perfect. Thank you, sir. Thank you, Balaraza, for your question. अनिल भाई, हमारे जैसे मैंने बताया 13 कंट्री से हमारे मेंबर्स आपको अभी सुन रहे हैं। न्यूयॉर्क में 2:30 बज रहा है सुबह का। हमारे न्यूयॉर्क के जो चैप्टर के चेयरमैन है मिस्टर राजीव जी पांडे है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी के आज नामी व्यापारी है, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। राजीव भाई, ओवर टू यू प्लीज। Thank you, Arunji, Ji, Pandey ji. for hosting this. Yeah. Anilji, thank you for taking the time to enlighten us with your wisdom. My name is Rajiv Pandey from Jito USA, New York. We're in the jewelry industry. And my question is, what do you think about the future of diamond mining companies, especially as currently companies like Dominion Mines are in trouble? So would like your thoughts and your ideas on the diamond industry. No, I took over. I took over Anglo-American 22% शेयर होल्डिंग। मैंने $10 में शेयर खरीदे थे। उसके बाद मेरे को था कि इस कंपनी को मैं खरीद लूंगा और उसमें 25% बिजनेस डीबीएर का था। डीबीएर भी हमने एक्वायर की थी। उसके बाद मेरे को लगा $10 से उसके दाम $20 हो गए शेयर के। और ये अंग्रेजों की कंपनी थी, मेरे को लगा इनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं फंस नहीं जाएं। और हमारा कोई ऐसे, हम दो चीज हरदम लेके चलते हैं दुनिया में, एक तो मूंछ नहीं रखते हैं और पूंछ नहीं रखते हैं। मूंछ का मतलब है कि हम कोई बात को पकड़ के नहीं बैठते हैं कि मेरे को ये करना ही है, और दूसरा हम चमचे नहीं रखते हैं। दो चीज के, मूंछ और पूंछ। तो हमको लगा कि ये मूंछ की बात हो गई, अब इसको अपने को निकल जाना चाहिए। तो मैं इस बिजनेस से, हम लोगों ने $4.2 बिलियन हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ में गए थे, हेज फंड के साथ में गए थे, और हमने 4.2 बिलियन प्रॉफिट करके उसको निकल गए। मैंने उस टाइम में बहुत इसको स्टडी किया था। ये बिजनेस हरदम चलने ही वाला है। डायमंड के ये तो जैसे मौसम चलता है वैसे चलता है। मौसम ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। नए नए तरीके इसमें निकल रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं इसमें। आप डायमंड के साथ में आज सिल्वर बहुत जोर से आगे बढ़ रहा है। सिल्वर में, डायमंड में भी बहुत वैरायटीज हो रही हैं, जो भी मेरे समझ में आ रहा है। आप प्योर डायमंड में भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। डायमंड इज फॉर एवर, डायमंड रहने ही वाला है। ये बात पक्की है कि इसमें आज के दिन जो हालात हैं वो थोड़े दिन के लिए खराब जरूर रहेंगे, लेकिन बाई पावर नहीं है। हमारा एक दोस्त है, वो डायमंड की ऑनलाइन बेचता था, उसको लगा वो बिक नहीं रहा है तो वो हल्दी और आंवला बेचने लग गया उसी ऑनलाइन पर। उसको लगा कि हमारे पास तो क्लाइंट हैं, अंग्रेजों को आंवला और हल्दी ये बहुत पसंद है, फिर उसने मांस बेचना चालू कर दिया। तो आपका माइंड इतना फ्लेक्सिबल है। एंड यू आर सिटिंग इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज द प्लेस ऑफ बिजनेस। टुडे द ग्रेट अपॉर्चुनिटी हैज कम where the most of the Western worlds are trying to save their skin. They think very short term. So you will definitely, being in New York, you will find a very good allied line, anything to do beyond, because the way I see, the government is accessible. Today government is so positive about the business. So you have to look at little bit of diversification in the diamond itself. Diamond people straight go to the real estate. That's not the answer. You have to look at, take some risk. The biggest thing you can do is to go to one of the very good consultant. Essential, very good. Please don't worry about the fee, but tell them this is what you do, and they will come out with the 10 different ideas which you find that you'd like to explore. And I'm looking forward, Mr. Pandya, your whole family is so decent and very enterprise. So I'm looking forward that you must find out, do some work, and see what allied line you can develop and develop your business. Very Thank good. you, sir. Perfect. All right.
अनिल साहब हम थोड़ा बैलेंस Other thing, करेंगे। yeah, one more thing I can tell you. In India, a huge opportunity. There are 900 companies has gone into the liquidation and LCLT. And I request all of you, please make a sell to look at this company. There are industrial company, there are real estate company, there are electronic company, all company is going for NCLT. A Jain community trust each other. If you wish, you can create a syndicate of 10 people and create some seed value and say, look, we trust each other because we may not be able to take big company, and please look at that opportunity also. Number two, government is going to sell lot of company, including bank. 13 bank will be sold. Whether it's a Canara Bank, Allahabad Bank, these banks, be there, be prepared. You are sitting in New York, you have all your friends together, and do some homework. If you want to appoint EY or some consultant or accounting firm who gives you all the information. Today is a time of information. If you can, we always think that we know everything. No, still, please go to a professional place where they can give you all the data. And number two is, like-minded people, please create a partnership. Partnership is the need of hour. And we say, look, jointly we will develop this business. And we have no, हमारे यहाँ तो arrogance है ही नहीं. हम लोग बाद में कुछ भी करेंगे. So there is an opportunity where you can develop this business. I'm sure everybody who's listening, this is the great opportunity for all three places to start the new business, to acquire NCLT business in India, and to acquire government companies in India. These three opportunity will come. Yeah. Fantastic. अनिल भाई साहब, हमने इसको ऐसे बैलेंस किया है कि हमने हर इंडस्ट्री का एक ऐसे बादशाह को लाया जो आपको क्वेश्चन करे. तो अब हमने थोड़ा इसको चैरिटेबल मोड में लेके गए, जहाँ पे हमारे सुगाल चंद साहब है, जो आज माननीय हमारी कम्युनिटी में वो कहा जाता है जो लेफ्ट हैंड दे वो राइट हैंड को मालूम ना पड़े. तो आप बहुत बड़े दानदाता है और आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. सुगाल बासु, ओवर टू यू प्लीज. यस सर. इससे पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूँ. हम लोग जो कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं वो भी चैरिटी है. हम लोग अगर वो भाव नहीं है तो भाव को लेके आ जाएगी. मैं कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं करता हूँ जिसमें कि ये मेरे को सामने से बोला जाए कि ये सोसाइटी को हेल्प करेगा. मैं अपने आदमियों को भी बोलता हूँ कि मैं कुछ भी बोलूँ, आप मेरा कोई बात मत सुनिए जब तक कि आप अपने दिल पे हाथ रख के आपको दिल में नहीं लगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सोसाइटी के काम नहीं आ रहा. जितनी बड़ी चैरिटेबल काम हम लोग करते हैं, विशेष चरण भी, इसके अलावा और लोग भी जो चैरिटी का काम करते हैं वो भी हमारे सिर माथे पे है, वो भी बहुत बड़ा करते हैं. बट जो हम बिजनेस भी करते हैं तो वो भी उसी का भाव, उसी का ध्यान रख के करते हैं. प्लीज गो अहेड. अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हमारे बीच में आए. मेरे को आनंद सुराना जी ने आपके बारे में और आपकी फिलैंथ्रोपी के बारे में बहुत कुछ बताया. सुन के मेरे को बहुत अचंभा भी हुआ कि आज के ज़माने में भी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच आए. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको इस फिलैंथ्रोपी के लिए मोटिवेशन और ऊर्जा कहाँ से मिलती है और कैसे आप इतना कुछ कर पाते हैं. और जैसे अभी आपके प्रश्नोत्तरी में आपने पार्टनरशिप के ऊपर भी बहुत जोर दिया था. यस, उस बात को मैं भी बहुत ज़्यादातर जोर देता हूं और आपके माध्यम से बात हमारे यंगस्टर्स में जाएगी तो इट विल हैव ए वेरी गुड इफेक्ट. क्योंकि एक और एक दो होते हैं लेकिन एक 11 होते हैं. तो दैट्स अ वेरी गुड आंसर आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू एंड आई वुड लाइक टू नो व्हाट मोटिवेट्स यू एंड व्हाट गिव्स यू द ग्लूकोज टू डू ऑल दीज थिंग्स, प्लीज. एक तो स्वभाव भी है और दूसरा है कि इतने लाइफ में धक्के खाए हैं. मेरी माँ को 400 रुपये मिलते थे, उसमें हम 4 बच्चे थे. मेरे को लगता है मेरी माँ से बढ़िया कोई माँ नहीं हो सकती है. वो टाइम देखा है तो हम कनेक्ट हो जाते हैं इमीडिएटली ग्राउंड फ्लोर पे. तो कोई भी आदमी हमारे सामने रहता है उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ देखी है. और शुरू से आदमी का स्वभाव भी रहता है. आप देखेंगे मेरे को हरदम रहता था कि मेरे को बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है. मेरे को मालूम नहीं था कैसे बनूंगा,
लेकिन ये हरदम था, मेरे को रहता था कि मेरे को बाहर जाके कंपनी को लिस्ट करनी है, मेरे को बड़ी कंपनी खरीदनी है। तो एनर्जी लेवल तो हम जैसे जैसे काम आगे करते जाते हैं, एक तो माँ बाप हमारे रहते हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, वो इतने बिजनेस में इतने सक्षम नहीं थे, जो भी थे बहुत सक्षम थे। वो मेरे पीठ बोलते थे, बेटा तुम पीठ ठोक के काम करा लिया करो, जरा झंझट में मत पड़ो, और निभ जाओ और निभा लो, निभ जाओ और निभा लो। तो दूसरा बात है कि हम लोग सबको कोई ना कोई हैंडल तो पकड़ना ही पड़ेगा। हमने कृष्ण भगवान का हैंडल पकड़ रखा है, आप किसी ने माँ बाप का हैंडल पकड़ रखा है, किसी ने अपना गुरुजी का हैंडल पकड़ रखा है। ये एक इल्यूजन भी कह सकते हैं, बट वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है। अपने को अपने लाइफ में कोई ना कोई हैंडल तो पकड़ना ही पड़ेगा। वो हैंडल जो है उस पर हमको पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो बैठा है। जैसे बच्चा माँ के गोदी में रहता है या बच्चा सड़क पार करता है माँ का उंगली पकड़ के, उसको इतना विश्वास है कि मैं पार कर लूंगा। तो वो विश्वास आपको किसी के ऊपर होना ही चाहिए। और विश्वास में जब आप प्रण करते हैं कि मेरा ये काम पार, ये मेरी नदी नाव तू पार करा देना, वो पार करा देता है। मैं कोई रिलीजियस नहीं हूं, मैं पूजा पाठ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे को इतना विश्वास है जिसपे मैं विश्वास करता हूं, और उसके जाके माथा टेक करके जब मैं उठता हूं तो मेरे को ऊर्जा मिलती ही मिलती है। मेरा क्वेश्चन था कि जो आप फिलियांथ्रोपी कर रहे हैं उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अनुभव भी किया है कि उनके पास लाखों करोड़ों की पूंजी है, वो चाहते भी देना और दे नहीं पा रहे हैं, और उनके कोई संतान भी नहीं है, वो ये भी समझते हैं कि वो जाएंगे तो कुछ साथ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं। और आप इतना कुछ दे पा रहे हैं। अभी आनंद जी ने बताया 75% ऑफ योर वेल्थ यू आर डोनेटेड एंड डूइंग सो मच चैरिटीज। So how you get that motivation and urja? What you said is for industrialization and taking risk and doing business. But here I wanted to know how you get this, क्या कहते हैं, शक्ति to give part away the money from what you have, what you have earned with your wisdom, with your hard work, all those things. नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जितना भी आप देते हैं उससे आपको और व्यापार में भी बहुत बढ़ोतरी होती है, उसमें क्रेडिबिलिटी भी आपकी बढ़ती है। आप अपने पास, मैंने 75% दे दिया, लेकिन 25% का ही मैं करूंगा क्या? मैं जितना पैसा मैं उठाता हूं साल का मेरे को 2 मिलियन पाउंड में उठाता हूं, जबकि मैं सबकी सैलरी वैसी होती है, उसमें से 1 मिलियन पाउंड टैक्स में चला जाता है। 1 मिलियन पाउंड, आप विश्वास रखिए, मैं जितना भी हो सकता है उतना खर्च करता हूं, वो खर्चा होता ही नहीं। तो इसके बाद तो इल्यूजन है कि हम अपने हाथ में अपने आप में रखते हैं। हम जितना भी, जैसे हम हमारे एक मिशन लेके चलते हैं कि मेरी बहुत इच्छा है कि हिंदुस्तान में 6 करोड़ बच्चे हैं, उन 6 करोड़ बच्चा, एक भी बच्चा भूखा नहीं सोए। हर बच्चे को उसने क्या गुनाह किया है? बड़ा आदमी काम नहीं करता, उसको समझ में आती है, लेकिन जो बच्चे को खाना मिले, बच्चे को एजुकेशन मिले, उसकी हेल्थ केयर हो, ऐसा मैंने सोचा। तो आगे से आगे बढ़ के काम हो रहा है, महिलाएं जो हैं 16 साल 17 साल में बच्चों की शादी हो जाती हैं, उनके 3-3 बच्चे हो जाते हैं, कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड। उनको अगर 10-15 हज़ार रुपया नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, तो समाज का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा आप सोचेंगे तो आप में अलग ही ऊर्जा आ जाती है। बहुत सारे हैं, उनका स्वभाव, हम दूसरों की बुराई नहीं करें, अगला कोई नहीं करता है तो नहीं करे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, भैया मेरा पॉकेट तो बहुत लंबा है, लेकिन मेरा हाथ बहुत छोटा है, मैं क्या करूं? वो पहुंचता ही नहीं, वो हाथ उसके पॉकेट में पहुंचता ही नहीं। वो उसका स्वभाव बन गया है कि उसका हाथ जो है पॉकेट के अंदर जाता ही नहीं है। तो उनके स्वभाव को वहीं रहने देते हैं, उनके पास ही। भगवान उनका ही भला करे, अपने दूसरी तरफ देखे ही क्यों? जो करे सो भला, जो इसके नहीं करे सो भला। हम लोग निंदा नहीं करें लोगों की, जाने नहीं, उसी में मेरे को लगता है मेरे माता पिता ने ही सिखाया है, मेरे से कसम खिलवाई है उन्होंने कि तू कुछ भी हो जाएगा, मुंह बंद रखेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा। Fantastic. Thank you. लेकिन
अनिल साहब, हमारे पास अभी एक बहुत यंग एंटरप्रेन्योर है जो आज मेटल इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम किए हैं हमारे साउथ इंडिया में। कमलेश जी जैन है जो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। कमलेश भाई, ओवर टू यू। जी कमलेश जी। जी कमलेश जी। नमस्कार अनिल जी। मुझे आपकी एक नमस्कार कमलेश जी। मुझे आपकी एक आज की बात याद रहेगी कि बनिए की पूछ और पूछ नहीं होती है। खैर, कोविड के बाद कमोडिटी के बारे में नजरिया बहुत नेगेटिव हो गया है। डिमांड में लॉन्ग टर्म ड्रॉप हो रहा है, सप्लाई साइड माइंस भी अफेक्ट हो रही है। उसके ऊपर जो लिक्विडिटी क्रंच है उससे कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होने की आकांक्षा है। मेरा प्रश्न यह है कि इन सब फैक्टर के बावजूद नॉन फेरस मेटल के क्षेत्र में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है? और दूसरा सवाल मेरा यह है, आर द प्राइस ऑफ कॉपर एंड अदर बेस मेटल विल सस्टेन इन द लेवल इन द LME? हाँ, नंबर एक तो प्राइसेस जो है वो रहेंगी, यही रहेंगी, कुछ ऊपर ही जाएंगी, नीचे नहीं आएंगी, क्योंकि नई माइनें नहीं खुल सकती हैं, बहुत डिफिकल्ट है खुलना। हमारे बलडोटा से आपने बताया ये बहुत डिफिकल्ट काम है, 20-20 साल लग जाते हैं माइंस को खोलने में, लगाने में, तो प्राइसेस ये रहेंगी। इसके अलावा डाउन स्ट्रीम में तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम क्वालिटी का माल बनाएं, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये जो चाइना में बंद हुआ उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग एल्युमिनियम में एक कार में 33 पार्ट्स लगते हैं जो कि एल्युमिनियम के हैं, उसके अंदर से 16-17 पार्ट्स अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि क्वालिटी नहीं बैठती है। कॉपर में आज कॉपर ट्यूब, एयर ट्यूब हिंदुस्तान में अकाल पड़ गया है, और एयर कंडीशनिंग का इतनी जरूरत है फ्रीजिंग इक्विपमेंट की। अगर आप अच्छी क्वालिटी के कॉपर ट्यूब बनाएंगे, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, आप उसमें कभी नुकसान नहीं पा सकते हैं। तो चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे कॉपर हो, जिंक में डाई कास्टिंग है, जिंक की मेडिसिन हैं, इनमें बहुत, ये मैं बार बार फिर बोलता हूं आपको कि हमारी क्षमता है, आपकी क्षमता है एक एंटरप्रेन्योर की, लेकिन आपको साथ में एक प्रोफेशनल कंपनी का साथ लेना ही पड़ेगा, उसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एक नहीं, दो रखिए, एक एक्स कंपनी को रखिए, एक वाई कंपनी को रखिए, वो डेटाज आपके पास लेके आएंगे, वो आपको डिमांड सप्लाई बताएंगे, वो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी बताएंगे, उसके बेसिस पे उसके बाद वो वहीं रह जाते हैं। उसके बाद आपका रोल आता है, फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप का रोल आता है। अब हम लोग रिस्क लेंगे, रिस्क लेके उसको आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम देखेंगे उस इंडस्ट्री की कोई कंपनियां बंद है, उसको हम ले सकते हैं क्या, हम नई कंपनी चालू कर सकते हैं क्या। बाहर में सारे जो कोलैबोरेटर हैं वो खाली बैठे हुए हैं। आज हम कोई भी चीज की, जैसे एल्युमिनियम पाउडर है, आप कोई चीज का नाम ले दीजिए, बिना मेटल के तो कुछ होना ही नहीं है कमलेश जी। लेकिन हम लोग को सबसे पहले काम करना पड़ेगा प्रोफेशनल तरीका से उसको एनालाइज करें। एक बार प्रोफेशनल तरीका से एनालाइज कर लेंगे तो आपको हुक्मी दाव आ जाएगा, आपके दिमाग में हुक्मी दाव आ जाएगा कि नहीं ये काम हम करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को लगता है जो हम सोच रहे हैं वही सही है। आप इन प्रोफेशनल कंपनी से बात करेंगे तो आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आपको लगेगा जैसे मैं सोच रहा था वैसा नहीं है। तो बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना हिंदुस्तान में कुछ हुआ ही नहीं है। मैं मोदी सरकार से ही बोल रहा हूं कि आपको आने के बाद आपको सबसे बड़ा काम करना है कि एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना है। हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए हमारी फैक्ट्री चालू होती है, उसमें वो हम लोगों को वहीं छोड़ देते हैं। आप कहीं दुनिया में जाएंगे तो जब तक कि आप फैक्ट्री चालू नहीं हो जाती है, गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है। आपके यहाँ कोयला आया क्या, आपके यहाँ बिजली आई क्या, आपको कोई लेबर की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, और कोई सुविधा चाहिए बताइए, पानी सुविधा बताइए, ये गवर्नमेंट पीछे लग के कराती है। ये हमने बार बार गवर्नमेंट को बोला है कि आप जो है डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। आप जैसे गवर्नमेंट कंपनियों को देखते हैं वैसा के वैसा प्राइवेट को देखिए, और उनको यू मेक श्योर कि जो इंडस्ट्री आप लाने के लिए तो बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद चालू करने के लिए आप छोड़ देते हैं। आने वाले दिनों में ये पॉलिसी चेंज करके गवर्नमेंट का काम होगा, जिला कलेक्टर का काम होगा, उसके पास सारे पावर रहेंगे जो अपने को 100% सपोर्ट करके हमारा एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस है वो कराना है। हम लोग आज हिंदुस्तान का कोई व्यापारी किसी भी हालत में गलत काम करने वाला नहीं, वो एनवायरमेंटल को फ्लॉट करने वाला है ही नहीं। विद इन द एनवायरमेंट
ही विल डू एनवायरमेंट में 3 ही चीजें होती हैं। एक तो हमारा एयर क्वालिटी दे विल मेक श्योर कि एयर क्वालिटी, उसके सारे मॉनिटरिंग सिस्टम आ गए हैं। एक हमारी वाटर है, वाटर को हम कोशिश करके रिसाइकिल करें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होता है। तीसरा हमारा वेस्ट डिस्पोजल है। वेस्ट डिस्पोजल हमारे यहाँ इतनी कंफर्टेबल वे में हम वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हैं, उसमें पूरी प्लानिंग कर लें। इन तीनों चीज को लेकर, ये तो मैंने आप डिटेल की बात बताई, बट ये आपको मैं बता सकता हूं कि नॉन फेरस में या किसी भी एरिया में जो आप समझते हैं उसमें आप एक बार कीजिए, एक बार डिटेल में जाइए, आपके चेहरे पे इतनी स्माइल आ जाएगी, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो काम को आप करेंगे। एक्सीलेंट, थैंक यू अनिल भाई साहब। अनिल भाई साहब, हमारे पास और एक यंग डायनामिक अनिल जैन जी है जो हमारे चीफ सेक्रेटरी जीटो के, वो भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। ओवर टू यू अनिल। जी अनिल जी। नमस्कार अनिल जी। हमेशा मुझे आपके नाम से बहुत प्यार रहता है सर। मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे को अपने नाम से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं हमेशा आपके ऊपर डाल देता हूँ। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स बीन रियली अ ग्रेट प्लेजर फॉर ऑल द जीटो मेंबर्स ग्लोबली टू हैव यू एंड लिसन टू यू। आई थिंक यू आर ऑलवेज बीन मोटिवेटिंग। जितनी बार आपको मिल के आते हैं, जैसे उनकी एनर्जी गणपत जी की ग्लूकोज चढ़ती है, वी आर इन रिन्यूएबल एनर्जी, मेरा तो रियल में करंट चलता है सर बहुत। और जो आज आपने टॉपिक बोला था एनसीएलटी का, मैं लास्ट 1.5 साल से एक डिवीजन क्रिएट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हम आके कंपनी एक्वायर करें। और सबसे पहले हमने एक्वायर किया सन एडिसन, तो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की टॉप कंपनी थी, उसको हमने ग्लोबली एक्वायर किया है और उसको वापस रीबिल्ड कर रहे हैं, सन एडिसन 2। करंटली इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर कि लिक्विडिटी भी बहुत है बैंक्स के पास, बट कंपनीज के पास लिक्विडिटी आ नहीं रही है बिकॉज ऑफ पास्ट इश्यूज जो हुए हैं इंडिया में। एक जनरल मैनेजर, एक चीफ मैनेजर बैंक का बहुत डरता है आपको कोई भी लोन देने के लिए, इवन प्रोजेक्ट इज वायबल। वो मतलब बोलता है कि आप अपना सब कुछ लगा दीजिए इसी पे प्रोजेक्ट पे, अगर हम सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट पे लगाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट था इंडिया में, धीरे धीरे बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गया वो। अनलेस अगर आप टॉप 100 में से नहीं हो और आपका नेटवर्थ 3-4 टाइम आपके प्रोजेक्ट वैल्यू का नहीं हो, तो आपके पास आते भी नहीं है वो। तो उसका आप क्या समझते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है सर? मुझे पता है आज ग्लोबली बहुत पैसा अवेलेबल है, बट थोड़े रेस्ट्रिक्शन इंडिया में, वो कैसे लेके आए सर उसको भी बहुत प्रोफेशनली आप देखिए, हिंदुस्तान में इक्विटी फंड बहुत अच्छे हैं, विलायत में बहुत अच्छे हैं। हम लोग कभी भी हम तकलीफ में हैं ये बोलना बंद कर दीजिए। बोलो भाई हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारा काम बहुत अच्छा है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम में हम पार्टनर लेना चाहते हैं। तकलीफ की बात हम करें ही क्यों, और तकलीफ है भी किस बात की? आप देखने में इतने स्वस्थ हैं, इतना आप खुशमिजाज हैं, तकलीफ किस बात की है? सारी दुनिया तकलीफ देने में गुजरी हुई है, तकलीफ कुछ नहीं है। हमने ऐसे हमारी स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम अपने बिजनेस में एक बिजनेस पार्टनर लेना चाहते हैं जो हमारे साथ काम करे। आप अच्छा, आज हमारे पास, हमारे राजस्थान में बोलते हैं बात और भाटा, उसको जैसे बैठाओ वैसे बैठ जाता है। भाटा होता है पत्थर, तो उसको जैसे बैठाएंगे वैसे बैठ जाएगा। आप इतना अच्छा बात करते हैं। आप आज के दिन में मेरे हिसाब से जितना प्राइवेट इक्विटी वाले के पास पैसा है, किसी के पास नहीं। थोड़ी वो टर्म्स उनकी खराब होती हैं वो, लेकिन कोई हर्ज नहीं है उससे। अब अपना काम चलेगा, क्योंकि एक बार ये काम चल गया फिर दूसरा काम चालू कर लेंगे। अपना एक वो जमाना चला गया जब एक ही काम में जिंदगी निकाल देनी है। ये तो सूत्रधार है, इससे आप और आगे बढ़ेंगे। एक काम चालू आपका हो गया, ठीक से चल रहा है, तो दूसरे काम में जाएंगे। लेकिन आपको अल्टरनेटिव फाइनेंस का, हर चीज का, एक वाइफ को छोड़कर सब चीज का अल्टरनेटिव है। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल जी। परफेक्ट। अनिल साहब, अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट है उनके अलावा हमारे पास 450 क्वेश्चंस आए हैं, बट मैं उसमें से 1-2 और आपको पूछूंगा, बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि मैं 450 निकाल सकूं। जो हमने क्या किया है साहब, जो काफी इंडस्ट्रीज अलग अलग क्वेश्चन निकाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया है अश्विन जी राठौड़ से आया है, वो पूछ रहे हैं कि द ऑयल सिनेरियो सीम्स वेरी फ्राइटनिंग, हाउ इज द फ्यूचर ऑफ ऑयल इज फोरसीन इन नेक्स्ट 6 months to 1 year? As the oil prices have crashed groundbreaking, as my primary business is dependent on oil companies, as many primary businesses are dependent on oil companies, could you please advise us, what do you foresee that the future of oil would be?
Number one, preserve your cash. No matter what happened, no question what happened, you preserve your cash. It is very important. Oil industry definitely have a future because of this COVID, because of the war. ये सब करेक्शन हो रहे हैं. आज हिंदुस्तान में हमको छोड़कर और कोई तेल बनाता नहीं है. उसके बाद भी मेरे को लग रहा है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, क्योंकि सारी दुनिया अपने झमेले को साफ करने में लगी है, परेशान है. हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं. प्लानिंग करने में हमको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तेल बनाना है. उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. तो मेरा इससे यही है कि तेल की इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन तेल की इंडस्ट्री में आदमी डिसिप्लिन नहीं था. उनके कॉस्ट बहुत ज्यादा थे, उनके खर्चे बहुत ज्यादा थे. वो उनकी सोच जो थी हरदम आसमान में चलती थी. उनको जमीन पर उतरना पड़ेगा. उनको आज ये मालूम करना पड़ेगा कि शावर से नहाना नहीं है, हमारे पास बाल्टी में पानी है, उसी से हम नहाएंगे. उनको समझना चाहिए कि हमको, उनके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि हम सब लोग मरने वाले हैं, लेकिन मैं सबसे लास्ट मरूंगा, क्योंकि मैं इतना होशियार हूं, इतना मजबूत हूं, मैं सबसे लास्ट में मरूंगा. वो भावना उनकी रहेगी तो उनको कोई नहीं हटा सकता है. ये तेल का बिजनेस बहुत अच्छा है, स्पेशली हिंदुस्तान में. तो इट विल फ्लरिश लाइक एनीथिंग. हिंदुस्तान को अपना तेल बनाना ही पड़ेगा. तो ये प्रीमियम मार्केट है. थोड़े दिन मेरे से वादा आप कीजिए कि हर हालत में आप बेल्ट को टाइटन करेंगे. आप अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी का बैक हटा दीजिए. अगर आपके कुर्सी के दोनों तरफ अगर हाथ रखने की जगह है वो हटा दीजिए, बेंच पे बैठना चालू कर दीजिए. जितना कम से कम खर्चे में जितना आप टाइट करके चलेंगे, मैं आपसे खाली 6 महीना और 9 महीना ही मांग रहा हूं. आप विश्वास कीजिए, 9 महीने के अंदर अगर आप सस्टेन कर गए, आपने अपने कैश को प्रिजर्व कर लिया और मनस्थिति को पॉजिटिव रखा, और एक ने एक सहारा, मैंने जैसे बोला आपको, एक सहारा तो आप ले लीजिए. होगा ही सहारा. माताजी पिताजी घर में, उनका सहारा ले लीजिए, भगवान का सहारा ले लीजिए, खुदा का सहारा ले लीजिए. एक का सहारा लेके बोलिए, भैया मैं तुम पर कंप्लीट में शरणागति हूं, तुम्हारे ऊपर, आप मेरे को रास्ता दिखाओ, और जिस रास्ते पे आप दिखाओगे उस पर मैं चलूंगा. 6 महीने से 9 महीने में आपका हर हालत में टाइम रिवर्ट कर जाएगा. मैं ज्योतिषी की तरह नहीं बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ज्योतिषी की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जो दिल में आ रहा हूँ बोल रहा हूँ. No, perfect, sir. This is absolutely appreciable. एक question London से आया अनिल साहब. He says, this is from Dr. Mehul Sangrajka. He says, COVID-19 has changed the world with no expectations of vaccines for many months. Social distancing is here to stay, and life as we knew it may never return. Lack of motor and air transport has decontaminated the whole oil industry. Lack of consumerism has done the same with hospitality and travel, consumerism. All of this affects producers of other raw materials. As someone who's running a multi-billion global enterprise, how do you see the effects of COVID-19, and how do you now plan for the next 5 years? Now, beautiful question. This is the reality of life. According to me, the things will be better. Our environment will be better. We'll be close to our family. The value system will come. Unnecessarily when we are traveling, आज बॉम्बे जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, आज रात में यहाँ रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, फिर उस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं. किसी भी आदमी से बात करो, बोले मेरे को अभी तीन फंक्शन और अटेंड करने. पागल करने, क्या कर रहे हो तुम? ये सब छोड़ दो. अपने बेसिक उस पे आ जाओ, बच्चों के पास रहो, अपना काम करो. अपने जो कछुआ जो होता है, जब विपत्ति आती है तो अपने सारी इंद्रियों को समेट लेता है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है. आप भी सारी इंद्रियों को समझ के प्रोटेक्ट करो ना. और आगे आने वाले दिनों में हमारे पास काम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम बढ़ते जाएंगे. आज के दिन सबसे जरूरी है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें. Correct. कि अभी आज के दिन किसी को अगर पैसा नहीं देना है, अगर हम नहीं दे सकते हैं, तो उससे सीधा डायलॉग करना अच्छा है कि भैया मेरे पास अभी पैसा देने को है नहीं, मेरी ये पोजीशन है. ये आप कभी धोखा नहीं करें, लेकिन सच्चे दिल से अगर बात करेंगे, मैं 6 महीने में बात देने वाला हूं या 1 साल के बाद देने वाला हूं, वो चाहे वो बैंक हो,
चाहे वो आपका कोई हो, जो होना हो जाएगा। हम भागे भागे नहीं फिरे, जितना भी हम क्लैरिटी लेके सिंपल तरीके से बैठे, ईश्वर का ध्यान रखेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकाल के आगे आएगा। आने वाले दिनों में मैं उनके साथ में हूं। हर चीज चेंज हो गई है, वो चेंज हो जाएगी, उसके साथ हम भी चेंज हो जाएंगे। Excellent. इस दुनिया में खाली आप पैसा कमाने के लिए तो नहीं आए ना। अगर यही रहे कि अगर हम दुनिया में पैसा, हम तो कर्म करने आए हैं। जो भी कर्म हमारे सामने आएगा उसको हम अच्छी से अच्छी तरह से करेंगे। ये शायद कोविड इसलिए भी आया है कि हमारी हवस कम करने के लिए आया है, कि हमारी हवस कम हो जाए। Correct. हवस का अंग्रेजी मेरे को आती नहीं है, आप अपने आप से बना लीजिए। काफी समझ गए। अनिल भाई साहब, आप रियल एस्टेट में नहीं है, बट हमारे काफी जिगरी दोस्त है चंदन भाई साहब, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं, because you've been more of entrepreneur in terms of every business, you know things very well. He's asking, how would the real estate business be post COVID? I'm sure you've been seeing what's happening in London, what's happening in India. So he wants to get a view from you as to where do you think real estate will stand? I think real estate is a good future. My imagination is कि real estate में time to come एक ही बिल्डिंग 100 तल्ले की बनेगी, 100 फ्लोर की, उसी में मकान भी रहेंगे और उसके साथ में 50 एकड़ के 100 एकड़ के फॉरेस्ट रहेंगे। उसमें ही ऑफिस होगा, उसमें ही आपके स्कूल होंगे, उसमें ही आपके कॉलेज होंगे, उसमें ही हॉस्पिटल होगा, उसमें ही आपके मॉल होंगे, उसमें ही सिनेमा हॉल होंगे अगर होंगे तो, और उसमें ही आप रहेंगे, तो सारी चीजें आपकी उसी में पूरी होंगी। ऐसा हमारा इमेजिनेशन है। मैं तो कोई भगवान तो हूं नहीं, मैं सोचता हूं उसके सामने आपकी जो कि अननेसेसरली जो रोड पे भागते हैं, कूदते हैं, भाग रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, 2 घंटे स्कूल जा रहे हैं, फिर यहाँ से मॉल खरीदने जा रहे हैं, सब एक बिल्डिंग में कंसंट्रेट हो सकते हैं और वो पूरे बिल्डिंग जो है एक शहर ही रहेगा। उसके सामने आपके पास 50-100 एकड़ का जंगल है, उस जंगल में प्रकृति को आप प्रिजर्व कर सकते हैं और उसमें आप वो एक अलग ही नमूना हो सकता है। मेरे को आने वाले दिनों में रियल एस्टेट दूसरा अप्रोच होगा। रियल एस्टेट के बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। आज जैसे धारावी में हो रहा है, आज जैसे जो ये सारे के सारे अब तो हर हालत में ही ये निकलेंगे और निकल के लो बजट फाइनेंस रियल एस्टेट will be is in the air. So I don't foresee any reason, and you have to do better engineering. Today, please make your real estate, I don't have to tell them, they know better than me, but real estate is going to be technology driven, innovation driven. Innovation, technology, what we can bring something new is very important. And time to come, today world is very comfortable financing real estate. So if you have a good real estate, good ideas, I think you will get a private equity people to come and join with you. Fantastic. Thank you, Sab. Daulat Bhai is online if he wants a question. Hamari Chennai Chatra ke chairman hai, Sab. I think before Daulat Bhai comes in, Kamlesh Bhai from Indore has sent you a question, Anil Sab, which he says, you've been talking about nation building, sir, which is quite impressive. And this is exactly what we as young nation should look at. But also, don't you think respected industrialists like you should adopt villages rather than politicians for the better development of India? What is your take on this, sir? No, why to take a village? We are, all of us, like my Nandghar program is, I want to create a Nandghar. This is my vision. आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहिए, गुड विशेष चाहिए कि 1.5 लाख से 2 लाख नंदघर हिंदुस्तान में बने। और नंदघर भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। वो उसमें सोलार हैं, उसमें बोरवेल हैं, उसमें सब चीज टीवी है जिसमें कि हम सबसे कनेक्ट करें। हम जो है अभी बहुत कीन है, मैं रात दिन रिसर्च में लगा हुआ हूँ कि कितना खाना बनाएंगे। अगर हमारे पास 3-3, 4-4 प्रपोजल हैं अमेरिकन ड्रग कंपनियों के, उनको 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन चाहिए। वो बोलते हैं बच्चा अगर आधा खाना भी खाएगा, ये कैप्सूल हम डेवलप करेंगे जिससे कि कैप्सूल इज लाइक ए ट्री। इफ यू प्लांट इन सम चिल्ड्रन स्टमक, that will take care of the rest of the food. So, not adopting village, whatever comes to you,
भगवान राम जो थे इतना बड़ा सेतु बना रहे थे श्रीलंका में रावण को हराने के लिए, वो चीटी और हनुमान जी दोनों अपने अपने हिसाब से पत्थर लेके डाल रहे थे। वो चीटी जो रास्ते में आ गई, आपको सबको मालूम है, हनुमान जी ने कहा तुम हटो रास्ते से, हम बड़े काम में जा रहे हैं। राम जी ने देखा, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वो चीटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि हनुमान तुम। वो अपनी क्षमता से अपना काम कर रही है, तुम अपनी क्षमता से अपना काम कर रहे हो। इतने बड़े ब्रह्मांड में भगवान खाली इंटेंशन ही देखता है, प्रकृति आपको इंटेंशन ही देखती है। तो आप एक विलेज करें, एक गांव करें, एक छोटा सा दान किया हुआ चीज भी बहुत बड़ी बात है। भावना की बात बहुत जरूरी है। फैंटास्टिक सर, गुड आंसर आपका। बहुत टाइमली आपने ये क्वेश्चन एजुकेशन साइड से, जो जिगीश भाई हमारे काफी अच्छे करीबन दोस्त अहमदाबाद से पूछना चाहते हैं आपसे। He says, can education sector change the future of India, or how much important is to develop education sector to avoid brain drain from country? मेरे हिसाब से तो सब चलते रहना चाहिए। एजुकेशन में मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है कि हायर स्टडी भी हो। एक तरह से मेरे को लगता है कि बच्चों को 6 साल तक जो सिखाया जाता है उसके अलावा सिखाने की जरूरत नहीं है। वो इतने आप में सक्षम हो जाते हैं कि वो अपने लाइफ को आगे बढ़ा लेंगे। दोनों बातें अपने अपने हिसाब में एकदम सही है कि हायर एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। और अगर आदमी में विवेक हो जाए तो बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। तो आई एम नॉट ए फिलोसफर, but I'm in for because what has happened in Harvard, I always thought India spent $70 billion in higher education, sending their children. We can't afford the $70 billion. And 20% faculty of the world are Indian. So why can't we create the similar universities in India where we can give the better facilities, better education, better technology, and we can attract people from outside. So it is something going to happen. Government has to start trusting the entrepreneur. Government has to trust Anand Surana. Government has to trust Baldota ji. Has to trust all of us. And जब गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया है, हमने डिलीवर किया है। जब गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया, हमने कभी सोचा नहीं था ऐसी एयरलाइन आएंगी। गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया, हमने वर्ल्ड क्लास की एयरलाइन थी, चाहे वो जेट एयरवेज हो, चाहे कोई हो। हमने सोचा नहीं था एयर इंडिया के बाहर जाएंगे। जब उन्होंने ट्रस्ट किया तो हिंदुस्तान में प्राइवेट कंपनियों ने वर्ल्ड के बेस्ट टेलीफोन दिए। जब उन्होंने ट्रस्ट किया, हर चीज के लिए जब भी ट्रस्ट किया, स्टील कंपनी, वर्ल्ड क्लास की स्टील कंपनी बनाई। जो डिलीवरी हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं वो एजुकेशन है। तब भी आज वो हमको बोले कि आप वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाइए। मैं आपको बता सकता हूं कि 10 लोग खड़े हो जाएंगे और ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेगी कि क्या चीज बनाई है। जितना एक ही मंत्र है कि हमारे एंटरप्रेन्योर को, आप जैसे लोगों को भगवान, ये गवर्नमेंट ट्रस्ट करे। इतनी बड़ी जेलसी है इनमें। मैं फिर बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एनालिटिकल कर रहा हूं, क्योंकि मैं बुराई करने के मेरे लिए मेरे माँ बाप ने मेरे को कसम दिला रखी है। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि जब तक ये जेलसी आ जाती है उनमें, ये बिजनेसमैन, लेकिन हम लोगों को भी सीखना पड़ेगा हर हालत में कि हम सिंपल रहें, बड़े बड़े मकानों में नहीं रहें, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चढ़ें। आज के दिन भी आप देखेंगे वॉरेन बफेट खुद गाड़ी चलाता है, खुद छोटे से रेस्टोरेंट जाके खाना खाता है। जितने भी टॉप से टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो शादी ब्याह सिंपल करते हैं। हम लोग को शादी ब्याह सिंपल करनी पड़ेगी, हम लोग को मकान सिंपल रखने पड़ेंगे। हम लोग के जो लाइफस्टाइल है उसको सिंपल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास धन आता है वो हम समाज के अगेंस्ट में उसके कस्टोडियन है। जिस दिन जिस धन को अपना समझ लेते हैं उसी दिन से बुराई चालू हो जाती है। हमको हर हालत में जो भी धन हमारे पास आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि वो समाज के काम में आ रहा है, और उसमें अगर यूनिवर्सिटी बने तो बहुत अच्छी बात है। फैंटास्टिक साहब, बस हम एक लास्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे आपका, जो हमारे गॉडफादर पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं, मोस्ट ऑफ आवर मारवाड़ीज आर इन स्मॉल बिजनेस और दे आर ट्रेडर्स, व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? नो, टू बिकम ए बिग। और करेंगे क्या?
और करेंगे क्या? जो भी काम है, हालांकि बहुत से लोग हैं वो छोटी सी दुकान में भी राजा की तरह रहते हैं, और बहुत से लोग उनकी 100 दुकान है वो भंगी की तरह रहते हैं, वो भागते ही रहते हैं, न तो अपना घर देखते हैं, न बाहर देखते हैं, खाली भाग रहे हैं। तो मेरे को तो पान की दुकान वाले अच्छे लगते हैं, कम से कम राजा की तरह हैं, न उधर को लेना न माधो को देना, अपने हिसाब से बैठे हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। छोटे व्यापारी भी अपने हिसाब में बहुत अच्छे हैं, उनको वो सूट करता है वो कर लें। वो साधु महाराज के पास एक आदमी गया, वो बोला कि बिना जंगल में गए कहीं मोक्ष प्राप्ति होगी? तो बोले नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, आपको जंगल में जाना ही पड़ेगा। दूसरा एक आदमी आया उसे साधु महाराज के पास में, बोला महाराज जी घर में बैठे बैठे भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? बोला हाँ एकदम हो सकती है। तो दोनों एक जगह मिल गए। बोले भैया साधु जी ने कहा था कि बाहर जाए बगैर मोक्ष मिल ही नहीं सकता है। और बोला नहीं, मेरे को कहा कि घर में बैठ के मोक्ष हो सकता है। तो जिसकी जैसी भावना, साधु महाराज ने कहा जिसकी जैसी भावना वैसी ठीक है। तो आप छोटे व्यापारी को छोटी तरह से रहना है, उसको उसी में सुख है, सुख रहना चाहिए। और एक आदमी का मन हुआ कि मेरे को बड़ा से बड़ा कारोबार करना है, तो वो भी पूरा नहीं करो, बड़ा व्यापार। लेकिन हिंदुस्तान में पोटेंशियल बड़ा व्यापार करने की है, लेकिन बच के रहो भाई, ये हिंदुस्तान, ये ब्यूरोक्रेट से बच के रहो, क्योंकि जेलसी बहुत है, लोग कहीं ना कहीं आपको फंसा देंगे, फिर आपका 10 साल खराब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जब तक कि अपने लगन नहीं रखेंगे, ऊंची उड़ान नहीं रखेंगे, दो पंखे हैं, धर्म और कर्म, उनके दोनों के साथ के बैलेंस करते हुए जितना उड़ सकते हैं उड़िए। सो थैंक यू वेरी मच। और आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब है। यू आर टू गुड अनिल साहब, दिस इज एक्सीलेंट। मैं तो सबसे छोटा हूं आप लोगों में। मैं आपको बता रहा हूं अनिल भाई, आप इतने पॉजिटिव हैं कि हमारी जो भी ये डिप्रेशन जो चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है, आपको सुनने के बाद लग रहा है कि यार ये कोविड कुछ नहीं है, हम इसको आसानी से फेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, यू बीन सो इनविगोरेटिंग एंड फैंटास्टिक। अनिल साहब, अगर आपका I will just sum it up and maybe you can help me on this. What you mentioned about is very clearly, very nicely mentioned, saying that be grounded, otherwise you will be grounded. Business is charity. And you said, think of partnership, buy companies, build companies. You also mentioned that money comes to you to give to others, not to buy your own things. Simple as that, which is very nicely put up. You nicely put up that mentorship is important. You also very beautifully mentioned that risk-taking appetite is extremely important, as you've been doing. And finally, you spoke about trust. This is fantastic, sir. I think you've covered almost every industry which we were demanding and looking forward for. I cannot thank you enough for being with us today here, all of us from Jito and all over 14 countries today. Thank you so much for your time and truly, truly commendable session. May I hand it over to Gautam Bhai. Gautam Bhai, if you could please take it over and thank Anil Saab for coming over. And by the way, before we get there, Anil Saab, wo London ka dinner or wo movie was something which I cannot forget, because aapke saath every moment was learning for me, which I keep sharing with everybody, that dinner what we had was remarkable. And next time when I'm up there, sir, जरूर डिस्टर्ब करेंगे वापस आपको। लाइफ इज सेलिब्रेशन। आदमी आपके दिमाग के चिल्लट मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, आप लोग दिमाग में बैठा के रखिए। आदमी जन्मता है, जवान रहता है, हरदम जवान रहता है, एक दिन कोलैप्स हो जाता है। बुढ़ापा नहीं है लाइफ में, बुढ़ापा को निकाल के आप बाहर फेंक दीजिए। ये काफी अच्छी सजेशन है काफी लोगों के लिए आके। Thank you so much, sir. Gautam Bhai, over to you, sir. You there? I think it was a 1-hour show, and Anil Saab, we've taken 40 minutes extra of yours. Maafi chahte hain, but this was fantastic, sir. I've been receiving close to 400 messages now, telling what a invigorating session has been, and it's been by far one of the best sessions. So, and people have learned a lot, which is more important to us. आनंद जी, हाँ, एक चीज मैं हरदम बोलता हूँ, अपनी लड़कियों को, अपनी वाइफ को आगे कीजिए। आप कहीं उठा के कुछ भी देख लीजिए, उन्होंने ही दे आर टर्निंग पॉइंट। हम लोग ये आप देखेंगे, ये अपने समाज को आगे करके हरदम
कोई भी कंसल्टेंट आए वो एक दो डाइवर्सिटी को लेके इसको आना पड़ेगा। आपके डिपार्टमेंट में हो, हर हालत में डाइवर्सिटी को रखिए। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हमारी ये बच्चियां हैं, माँ बहनें हैं, हम लोग उनसे सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं, अच्छा रखते हैं। डरिए नहीं, किसी हालत में डरिए नहीं। आप पूरी कहीं कोई कथा उठा के देख लीजिए, उन्होंने औरतों ने ही आगे बढ़ के उसको मोड़ा है, एक अलग डिफरेंट एस्पेक्ट लेके आएंगी, डिफरेंट चीज लेके आएंगी। उसको आप हरदम ध्यान में रखिए। मेरे से वादा कीजिए, कहीं भी हो, चाहे माइनिंग में हो, होटल में हो, किसी में हो, उसको जरूर डाइवर्सिटी। प्लीज गो अहेड। आई एम सॉरी आई डिस्टर्ब यू, गो अहेड। नो सर, आपको चीज बता रहा हूँ, आपने जाते जाते काफी जनों का दिल जीत लिया। आई एम श्योर काफी जन अपन सब घर पे बैठे हैं, तो क्लोज टू अराउंड देयर आर 3,000 नॉट पीपल व्यूइंग नाउ, एंड ऑल दिस 3,000 लेडीज आर हियरिंग व्हाट यू सेड। आप तो उनके भी फैन बन गए सर, जस्ट लेटिंग यू नो। Gautam bhai, over to you, sir. Anilji, thank you very much. And at the start, we were saying that this is actually going to be a very insightful session, and it has actually come out to be more than that was expected. Thank you, Anand bhai, for a great moderation round. Over. Live still. Thank you so much, sir. We are ending the session now. Thank you.